The lesson Landscape of the Soul, written by Nathalie Truebroad. In this lesson, the writer describes about a Chinese painter named Bu Daoji. He was specially ordered to decorate the place wall by the emperor, and his last painting was a landscape. He was ordered for this by the emperor Zhuang Juanju. Emperor admired his wonderful scene. He saw the mountains, waterfalls, clouds floating in the sky, men walking on the hill paths, birds flying, and he praised the landscape. But the painter Bu Daoji, who was the Chinese painter, he said that there was a cave in the foot of the mountain, and in this cave there lived a spirit. He clapped, and the door of the cave opened. He went into the cave, but the emperor was left. The scene was very beautiful, but the scene disappeared in the end. With the scene, the painter was also disappeared. It means he was not seen again in this world. This is a very wonderful story about the Chinese art. Next, in China, here the writer describes two philosophers named Confucius and Zhongzi. They were famous philosophers. They wrote many books. In their books, many stories were found like this. It means such stories play a very important part in the Chinese traditional education, classical education, and in their books there were many stories. The books were full of these stories, and they help the master to guide his pupils in the right direction. Understand? And those stories we are revealing of the spirit in the books we are deeply revealing in the spirit in which the art was considered. It means the writer describes about the Chinese art and the artist, painting and painter. Here she gives the example of a famous painter. He painted a fly. Understand? But he did not paint it. He did not draw the eye of the dragon, because he feared that it would fly out of the painting. So the writer described that my native Flanders. The story is related from my this story was told my native Flanders.
and he found the most representative of Western painting. In the next, writer describes in the 15th century, this was the incident of 8th century, but in that next paragraph, the writer describes an incident, a story that is related in the 15th century, that is related with the 15th century. Understand that what happened in the 15th century? There is a name Antwerp. It is situated in Belgium, and a master blacksmith called Quentin Matsys. Quentin Matsys was a blacksmith, and he fell in love with the daughter of the painter. The father could not accept it. It means the father of that daughter did not like Quentin because he did not like his profession. Quentin slipped into the studio very secretly and painted a fly on his newest, on the latest frame. Understand? He painted a fly on the panel. What is panel? A piece of wood on which a picture is painted. Next, the writer describes that when that painter entered into his studio, he found similarities between the real picture, because he could not recognize that was the real picture, and they looked very same. He could not make any difference. Now he was impressed by Quentin, and he was ready to get his daughter married with him. Now he married with his beloved, and he became a famous painter. In this way, the writer compares the Chinese art with the European art. He gives some example of the Chinese painter and some example of European painter. Now he says in the Chinese story, कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, in the Chinese story, चाइना की जो कहानी है, the emperor commission a painting and appreciate its outer appearance. जो बादशाह था, उस बादशाह का नाम मैंने कल आपको क्या बताया था? जोंग जुआनजू भी है, जोंग जुआनजू भी है। तो जोंग जुआनजू ने इसकी प्रशंसा की थी बुदाऊ जी की आर्ट की। चाइनीज है ये चाइना की कहानी में द एम्परर कमीशन ए पेंटिंग कि जो बादशाह है वह कमीशन से आदेश देता है अब पेंटिंग चित्रकारी को एंड एप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, और उस चित्रकारी का बाहरी भाग मतलब रियलिटी नहीं आउटवर्डली अपीयरेंस को की प्रशंसा करता है। तो चाइनीज जो पेंटिंग है वो आउटवर्डली अच्छी लगती है, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन जो कलाकार है वो रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो चाइनीज कलाकार है वो अपनी जो कृति है उसका जो सच्चा अर्थ है उसे व्यक्त करता है अपने आप में। द एम्परर में रूल मतलब कला को बादशाह नहीं समझ सकता, ओनली द पेंटर कैन अंडरस्टैंड, पेंटर ही केवल कला को समझ सकता है। कह रहा है द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटोरी, कि बादशाह तो केवल टेरिटोरी का मतलब क्षेत्र, अपने क्षेत्र में शासन करता है, ही हैज कंकर्ड जो क्षेत्र उसने जीते हैं, बट ओनली द आर्टिस्ट, लेकिन जो कलाकार होते हैं नोज द वे विदिन, वे तो उस कला का आंतरिक रास्ता भी जानते हैं। केवल कलाकार ही कला की अंदर की रास्ता को जानता है। राजा किंग
only artist can understand. केवल कलाकार ही समझ सकता है आंतरिक रास्ता किसका, कला का। Let me show the way. Let me show the way. मुझे रास्ता दिखाने दो। पेंटर ने कहा था द दाऊ। दाऊ का मतलब होता है, जो दाऊ है तो शब्द का मतलब है वो द पाथ और द मेथड। पाथ माने भी रास्ता होता है, मेथड माने विधि या तरीका होता है। तो दाऊ शब्द का अर्थ है रास्ता अथवा तरीका। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ यूनिवर्स, और इस जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की रहस्यमय क्रिया भी होता है दाऊ का मतलब। द पेंटिंग इज गॉन, जो चाइनीज पेंटिंग है गुफा में बनी हुई थी दीवार पर, वो पेंटिंग इज गॉन, इट मींस लुप्त हो गई, खत्म हो जाती है। बट द आर्टिस्ट है रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो बनाने वाला है जिसका उद्देश्य था कुछ हासिल करना, वो अपने उद्देश्य तक पहुंच गया है, रीच्ड हिज गोल। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, कहता है कि पेंटिंग चित्रकारी या चित्र तो अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया, लेकिन पेंटर जो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, इसका मतलब है ये बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, किसी भी मटेरियल का मतलब भौतिक, अपीयरेंस का मतलब प्रतीत या उपस्थिति, ये किसी भी भौतिक उपस्थिति से, बियॉन्ड का मतलब परे है, ये किसी भौतिक उपस्थिति से परे है। क्वेश्चन दिया है मैंने, व्हाट आइडिया अबाउट आर्ट डिड द स्टोरी ऑफ हु दाऊजी कन्वे, क्या विचार प्रस्तुत करती है, कौन सा विचार लाती है, इसी पैराग्राफ में दिया है और पीछे भी क्वेश्चन दिए, क्या विचार लाती है। तो इसमें द चाइनीज स्टोरी conveys the idea that emperor could only rule over his territory and not understand the spirit of art. Only the artist knows the way within. He alone can enter the spirit of the universe. तो जो पेंटर होता है, चाइनीज कहानी हमें बताती है एक ऐसा विचार कि जो बादशाह है जो केवल अपने क्षेत्र में शासन कर सकता है, लेकिन वो कला की आत्मा को नहीं समझ सकता। केवल कलाकार ही कला की आंतरिक रास्ता समझ सकते हैं, और वही केवल इस ब्रह्मांड की जो आत्मा है उसमें कलाकार ही प्रवेश कर सकता है। इस पैराग्राफ से आंसर आया था, क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि जो बादशाह है चाइनीज स्टोरी में ये डिस्क्रिप्शन है कि चाइनीज स्टोरी टेल्स अस दैट एम्परर may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way, understand, and he can enter the spirit of the universe, और वही केवल यूनिवर्स की आत्मा में प्रवेश, द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में प्रवेश, ब्रह्मांड की आत्मा में प्रवेश कर सकता है कौन, केवल कलाकार। ब्रिंग आउट द ब्रीफ द कंट्रास्ट बिटवीन द यूरोपियन आर्ट एंड द चाइनीज आर्ट, यूरोपियन आर्ट और चाइनीज आर्ट में अंतर बताना है, देखेंगे आप लोग। अब क्लासिकल चाइनीज जो शास्त्रीय या जो ट्रेडिशनल जो चाइनीज लैंडस्केप है, चाइना के जो भूदृश्य हैं, इज नॉट मीन, उनका मतलब ये नहीं है कि टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, कि वे कोई वास्तविक दृश्य का वर्णन करें, दृश्य का चित्रण करें। एज वुड अ वेस्टर्न फ्यूगरेटिव पेंटिंग, जैसी कि पाश्चात्य यूरोपियन फ्यूगरेटिव प्रतीकात्मक अथवा लाक्षणिक पेंटिंग माने चित्र या चित्रकारी। जो चाइनीज लैंडस्केप है उनका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल व्यू का चित्रण करें, जैसे कि वेस्टर्न लाक्षण चित्रकारी होती है। वेस्टर्न जो आर्ट है, यूरोपियन आर्ट है, वो फ्लॉवरी होती है, फिगरेटिव होती है, आया ना समझ में। इसके बाद कहता है हियर एज द यूरोपियन पेंटर, जहां तक यूरोपियन चित्रकार की बात है, यूरोपियन चित्रकार वांट्स चाहता है यू टू बोरो हिज आईज, कि आप उसकी आंखें साफ करते, आप उसकी आंखें उधार लें,
शाब्दिक अर्थ बोरो मन उदाहरण लेके आए, ऐसा नहीं है। यूरोपियन पेंटर ये चाहता है कि जैसे उसने किसी चीज को देखा सेम उसी भाव से उसी दृश्य से आप भी देखें, ये मतलब है। यू टू बोरो हिज आई एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली ही एज ही साइड कि यूरोपियन पेंटर ये चाहता है कि आप भी वैसे ही देखें जैसे उसने देखा था। एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, उस विशेष भूदृश्य को एग्जैक्टली ठीक वैसे ही एज ही साइड जैसे उसने देखा था। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल एक विशिष्ट कोण से आप भी देखें, डेफिनेट एंगल से आप भी देखें। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, और जो चाइनीज चित्रकार होते हैं वे डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, वे जो है एकमात्र कोई दृष्टिकोण नहीं चुनते। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल, उनकी जो भूदृश्य होती है वो नॉट ए रियल वन, वो कोई हूबहू नहीं होती, वैसी रियल नहीं होती। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसमें किसी भी कहीं से भी उसमें प्रवेश ले सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, उनकी चित्रकारी में आप कहीं से भ्रमण कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ, जो चित्रकार होता है चाइनीज चित्रकार वो क्रिएट्स माने बनाता है अ पाथ, एक रास्ता फॉर योर आईज, आपकी दृष्टि के लिए, आपके नेत्रों के लिए, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, आप उसमें ऊपर नीचे यात्रा करें। इसका मतलब आप उस चित्र को देख के भ्रमण करें, उसे समझें। ट्रेवल अप एंड डाउन, देन बैक अगेन इन द लीजरली मूवमेंट, और बड़ी लीजरली फुर्सत से स्लो एंड पीसफुल, बड़ी मध्यम और शांति से आप आराम से लौट भी आए। दिस इज इवन मोर ट्रू, और इससे भी यह वास्तव में यह सत्य है इन केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल। हॉरिजेंटल एक तरह से क्षैतिज जो स्क्रॉल पट्टिका होती है, उस क्षैतिज पट्टिका के मामले में और भी ये बात सही हो जाती है। इन भी जब द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जब चित्रकारी का एक भाग धीरे धीरे खोलते हैं, द एक्शन ऑफ स्लोली, जब खोलने वाला धीरे धीरे खोलने का जब कार्य होता है, देन रोलिंग इट अप, फिर इसको लपेटते हैं इट अप टू मूव अप टू द अदर, फिर दूसरे भाग में जाने के लिए इसको लपेटते हैं। एट से डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन माने आयाम, एक्सटेंड कहते हैं, ऑफ टाइम, तो ये समय के आयाम से जुड़ जाता है। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और ये किसी अन्य चित्रकारी के रूप से यह बिल्कुल भी अज्ञात होता है, देखने को नहीं मिलता, अननोन होता है। इस कार्य को करने के लिए चाइनीज जो आपको मैं पेंटिंग बता रहा हूँ उसकी स्पेशलिटी बता रहा हूँ, कह रहा है इट आल्सो रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, और इसके लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक सक्रिय सहभागिता की जरूरत है ऑफ द व्यूअर, जो देखने वाला है दर्शक, उसकी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वह निश्चय भी करता है कि चित्रकारी में वह कहाँ तक किस गति से एट द व्हाट स्पीड ही विल ट्रेवल, उसमें ये यात्रा करेगा। अब पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और जो पार्टिसिपेशन जो सहभागिता है, भागीदारी है, वो शारीरिक भी होती है और मेंटल भी होती है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज, जो चाइनीज पेंटर होता है वो ये नहीं चाहता यू टू बोरो हिज आईज, कि आप उसने जैसे देखा वैसे ही आप भी देखो, वैसी दृश्य से आप भी देखो। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाइनीज पेंटर तो ये चाहता है कि आप जो है उसकी सोच को समझें, उसके मन में प्रवेश करें आप। द लैंडस्केप इज ए इनर वन, और जो भूदृश्य होता है वो उसका आंतरिक होता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है, एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और एक वैचारिक क्षेत्र होता है। तो आप लोगों के सामने प्रश्न था, ब्रिंग आउट इन द ब्रीफ, बड़े संक्षेप में वर्णन करिए द कंट्रास्ट बिटवीन यूरोपियन एंड द चाइनीज आर्ट। अभी आप लोगों को मैं बता रहा था कि चाइनीज आर्ट में और यूरोपियन आर्ट में वर्णन करना डिफरेंस, कंट्रास्ट क्या है। तो अभी आप पढ़ रहे थे कि यूरोपियन मीन्स वेस्टर्न लैंडस्केप कहलाता है, पाश्चात्य जो भूदृश्य हैं
वो रिप्रोड्यूस द एक्चुअल व्यू। वो पहली लाइन आपके सामने आई थी, ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। इसका मतलब है कि जो चाइनीज का मतलब चाइनीज जो लैंडस्केप है वे रिप्रोड्यूस, है ना, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। क्या कह रहा है कि वेस्टर्न लैंडस्केप रिप्रोड्यूस द एक्चुअल व्यू और चाइनीज लैंडस्केप डू नॉट रिप्रोड्यूस द एक्चुअल व्यू। एक अंतर हो गया। दूसरा, इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। जो यूरोपियन होते हैं वे जो भ्रांतिजनक समानता होती है, मतलब आप समझ नहीं पाओ कि ये चीज वास्तविक है, कितना भी सजीवता से बना देते हैं, तो उनमें जो यूरोपियन लैंडस्केप होती हैं वो क्रिएट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। वो एक तरह से भ्रम, वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करते हैं। तब इसके बाद आप लोग देखेंगे जो पेंटर है यूरोपियन, जिसे वेस्टर्न कहते हैं, पेंटर वांट्स द व्यूअर्स टू सी हिज वर्क थ्रू हिज आईज। कि जो यूरोपियन पेंटर होते हैं वो ये चाहते हैं कि अपने दर्शकों से कि उनके कार्य को वैसे ही देखें जैसे उन्होंने देखा है। अभी आपको मैं बता रहा था कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट हुआ करते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन आर्टिस्ट वांट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही साइड। जैसे उन्होंने देखा है, इन द सेम वे यू शुड लुक, तुम्हें भी वैसे ही देखना चाहिए। इसके बाद बताता है कि चाइनीज लैंडस्केप है वो वॉगी होती है ना, इट कास्ट अपॉन द व्यूअर्स टू यूज देयर आईज। और मतलब यूरोपियन पेंटर वांट्स टू सी द लैंडस्केप विद देयर आईज, अंडरस्टैंड, एंड they want that to the viewers should look at the same like they had seen the landscape। देखिए जो चाइनीज होते हैं, चाइनीज जो है चाइनीज पेंटर जो हैं वो क्या करते हैं, वो व्यूअर से वे नहीं चाहते कि वो हमारी तरह देखें, आया ना समझे। वो ये चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब कहने का दर्शक हैं, वो जो है अपनी दृष्टि से देखें, अपने विचारों से देखें। चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट टू बोरो हिज आईज। वो ये नहीं चाहते जैसे हमने दृष्टि देखा वैसे आप भी देखो। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो तो ये कहता है स्वयं आप हमारी सोच को समझो, हमारे मन में प्रवेश करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। तो जो भूदृश्य होता है वो आंतरिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, कॉन्सेप्चुअल स्पेस होता है, एक वैचारिक क्षेत्र होता है, वैचारिक स्थान होता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि यूरोपियन और चाइनीज आर्ट में डिफरेंस क्या है। यूरोपियन जो लैंडस्केप होती हैं वो एक्चुअल व्यू प्रदर्शित करती हैं, लैंडस्केप रिप्रोड्यूसेस द एक्चुअल व्यू, और जो चाइनीज होती हैं वे इट डज नॉट रिप्रोड्यूस द एक्चुअल व्यू। इसके बाद जो